Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about a basic and the fundamental rights. And under this fundamental rights, we have discussed about right to equality and right to freedom. Today, in this video, we will discuss about the next right. It is the third fundamental right, and the chapter number 2 of the political science is going on. Okay? So this is what a third fundamental right, that is right against exploitations. It is very much important rights, and the few things has been given by the Constitution of India to us, and that we'll discuss about that how the right against exploitation save our moral rights. Like in our country, there are the millions of the people who are underprivileged and deprived. They may be subjected to the exploitations by the other fellow human beings. ठीक है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है कि वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. और हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी होने के साथ साथ क्या है, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो एक लंबे समय से डिप्राइज्ड है. ठीक है, डिप्राइव्ड होने के चक्कर में वो उन एक्सप्लॉइटेड किए जाते हैं ऐसे ग्रुप जो सोसाइटी के हायर होते हैं. ठीक है, यानी आप ये मान सकते हैं कि पूरी सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो हाई कास्ट को बिलोंग करते हैं, जो ज़्यादा डेवलप की कैटेगरी में जाते हैं. तो कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कम डेवलप्ड हैं. तो जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, दे माइट एक्सप्लॉइट द राइट्स ऑफ द पीपल दोज हु बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट और लोअर ग्रुप. ठीक है, वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इन द कंट्री हैज़ बेगर एंड द फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट. देखिए, इट वॉज अ सोशल इविल एंड इट वॉज एग्जिस्ट अर्लियर, बट ड्यू टू दिस फंडामेंटल राइट, दैट इज़ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, this thing has been completely abolished. Under this particular things, a system was exist in our society, that was the beggar system. होता क्या था beggar system, उसको डिस्कस करते हैं. तो उसमें ये होता था, beggar या उसको फोर्स लेबर भी बोलते थे. वन ऑफ द पर्सन हैज़ गिवन some sums of the amount, and under this amount a contract has been signed by the person that he or she will work without taking any payment. यानी कुछ पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया जाता था, और उस पर्टिकुलर पर्सन से उस अमाउंट को देने के बदले में ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते थे कि ये अमाउंट के बदले में हम आपको बिना पेमेंट के एक लंबे समय तक वर्क करना पड़ेगा. तो इफ़ अ पर्सन इज़ वर्किंग एनी ऑफ द प्लेसेस without taking any payments, so that is called the forced labor or beggar system without payment. ठीक, another closely related to the form of the exploitation is buying and selling of the human being. That's a very problematic thing in our country, buying and selling of the human being, that is called human trafficking. Human trafficking जो है, it's a very dangerous or very much complicated social evils nowadays. Under that particular system, it is being exist by long terms. Under this particular system, a small, or you can say a lower caste people who is poor is generally sold out, and other person, a rich person, purchase the particular person and make him as a स्लैब. तो स्लैब सिस्टम या जो स्लैबरी था वो एक लंबे समय से सोसाइटी में एग्जिस्ट सोशल इविल थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कम्प्लीटली बैन कर दिया है इंडिया में. ठीक है, यू कैन टेक अ लुक ओवर देयर. देखिए, इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड यूजिंग देम्स एज अ स्लेव. उनको सेल करना या बाय करना और उनको एज अ गुलाम बना के रखना एक क्राइम है आज के टाइम पे. बोथ ऑफ दीज प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों चीज़ को प्रोहिबिट किया. द फर्स्ट थिंग्स फोर्स लेबर, ठीक है, और सेकेंड थिंग्स जो है वो आपका दैट वन यू कैन से बाइंग एंड सेलिंग, स्लैबरी सिस्टम. ये दोनों को इस पर्टिकुलर राइट्स के अंतर्गत, राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, द बोथ थिंग हैज़ बीन कम्प्लीटली बैन इन इंडिया. Forced labor was imposed by the landlords, moneyland and other wealthy persons in the past, and some form of the bonded labor still continue in the country. देखिए, even it was being banned by the Constitution of India, but even this type of the practices exist in some part of the country. The forced labor is generally made by landlord, money lenders or other wealthy persons. ठीक है, especially in the bricks cleans work. It has now been declared a crime and it is punishable. ठीक है,
अब ये क्या है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ में होता है, और आज भी जो ब्रिक के जो क्लेन होते हैं यानी जो ईंट के भट्टे होते हैं उनमें फोर्स लेबर आज भी एग्जिस्ट है। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को ऐसे फाइनलाइज़ किया कि अगर ऐसा कोई भी प्रैक्टिस कहीं भी पाई जाती है तो ये पनिशेबल है। यानी अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन फोर्स लेबर करवाता है तो उसको पनिश दे सकता है कोर्ट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड employments of the child below the age of 14 years is in a dangerous job like factories and mines। देखिए एक और थर्ड चीज़ थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट कर दिया है कि 14 ईयर्स यानी जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर की कैटेगरी, तो चाइल्ड लेबर इज़ बीइंग मेड अ इलीगल एक्टिविटीज़ इन द कंट्री एंड अ पर्सन इफ़ ही और शी टेकिंग अ सर्विस फ्रॉम अ चाइल्ड तो ही और शी मे बी द पार्ट ऑफ द पनिशमेंट, ठीक है। यानी चाइल्ड लेबर को कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन में बैन कर दिया गया है। और अगर कोई भी पर्सन चाइल्ड लेबर कराता है या किसी भी पर्सन की फैक्ट्री में या उसकी माइंस में कोई भी ऐसा बच्चा वर्क करता हुआ मिलता है जिसकी एज 14 से बिलो हो, तो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के ओनर के अगेंस्ट केस हो सकता है और उस पर्टिकुलर फैक्ट्री ओनर्स के अगेंस्ट जो भी पनिशमेंट होगा वो दिया जा सकता है, ठीक है। with the child labor being illegal and the right to education become a fundamental rights for the children, ठीक है। चाइल्ड लेबर को वो कर दिया गया और 6 to 14 ईयर्स ओल्ड यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी कर दिया गया है। In a government school, it is free to get the education the students who belongs to the age group of 6 to 14 यानी 6 to 14 के बीच की जो एज ग्रुप है उन्होंने इन सारी चीज़ों को कम्प्लीटली कवर अप कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बीन मोर मीनिंगफुल, ठीक है। क्योंकि ये जो मेन बेसिक पॉइंट्स है उनको एबोलिश करता है, इसलिए दीज थिंग्स हैज़ बिकम वेरी मच यूजफुल एंड द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा है राइट्स वो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।